So Jain students, so this is our third lecture of our ST2 solution. So far we have covered section A, which comprised of 5 questions, and then section B, and we had covered these 3 questions, first one, second one, and this third one, and then this fourth one we are going to cover today, and fifth one. So draw the JK flip-flop using NAND latch and explain the race around condition. Okay, so these are all covered already. So now let's start with this. Draw the JK flip-flop using NAND latch and explain the race around condition. So first of all, what is NAND latch? So anything which can store one bit of information is a latch. And how we can understand this latch? Let's suppose we are in a room and that room has been latched from inside or outside. So in any of these cases, no person can enter that room and no person can exit that room. So we can say that the state of that room is not going to change. That means this room has been latched. तो उस रूम से ना कोई बाहर जा सकता है ना कोई अंदर आ सकता है जब तक उस रूम को लैच किया गया. लैच मतलब जिसको हम सिंपल लैंग्वेज में बोल देते हैं दैट डोर इज क्लोज और चिटकनी बोल देते हैं सिंपल लैंग्वेज में वो. ठीक है, तो JK flip flop using NAND latch. So what is a NAND latch? So this is a NAND latch. 2 NAND gates cross coupled with each other. Cross coupled मतलब एक का आउटपुट दूसरे के इनपुट पर. ठीक है, तो this is one NAND and this is another NAND. Okay, and cross coupling is this. So this is a basic NAND latch. Okay, so for the time being you can name these inputs as A and B and these outputs and Q as QN and QN bar. So this is a basic NAND latch. Okay, now how this NAND latch can be used to design a JK flip-flop? It can be simply converted by using 2 more NAND gates. Okay, so I can use this same structure and design a NAND latch or a NAND flip-flop, NAND based JK flip-flop using the same structure. So how we can do this? I am simply shifting it slightly so that I can use it, my NAND latch. I am using 2 more NAND gates. 2 more NAND gates. The output of this NAND gate is connected here and this connected here. Okay, this J and K are the inputs of this JK flip-flop. There is a clock connection. This clock is the one which differentiates between a latch and a flip-flop. अगर ये clock नहीं होगी तो ये same circuit को JK latch कहा जाएगा. Okay, अभी तो ये SR बना है. This is in the current form as an SR flip-flop. Now how to make this SR flip-flop into JK flip-flop? तो अगर आप देखें, अगर मैं इनको लेबलिंग कर दूं 1, 2, 3 एंड 4, तो अभी जो 4th नंबर गेट का आउटपुट जो 3 के इनपुट पे जा रहा है ये 3 के साथ साथ अगर 1 पे भी चला जाए, ओके, दैट मीन्स दिस आउटपुट इफ ऑल्सो एंटर्स 1, सिमिलरली द आउटपुट ऑफ 3 विच इज रीचिंग 4, अगर वो 4 के साथ साथ 2 पे भी चला जाए, दैट मीन्स दिस कनेक्शन. अगर वो यहां भी चला जाए. नाउ दिस इज ए JK flip-flop. So this is the circuit diagram for a JK flip-flop. Okay, so draw JK flip-flop using NAND latch. So this is the JK flip-flop has been drawn, and what is the output of this JK flip-flop? For that we have to prepare its truth table. This J is actually acting like set and K is acting like reset. Okay, because originally it is prepared from SR flip-flop, but SR flip-flop had an issue of invalid output at 1-1 condition. So to resolve that we had prepared JK flip-flop. तो इसके अगर देखें तो that means 0-0. That means neither I want to set nor I want to reset. ना मैं set करना चाहता हूँ ना मैं reset करना चाहता हूँ. जब मैं कुछ नहीं करना चाहता then output will not change. That means the next output Qn plus 1 will be same as Qn. That means there will be no change in the output. Similarly 0, 1. That means I want to reset my output. Reset मतलब 0 करना चाह रहा हूँ. तो reset करना चाह रहा हूँ तो reset हो जाएगा. Okay. Similarly this 1. That means I want to set my output.
so it will be set. Similarly, last case 1 1. So this 1 1 means I want to set also, I want to reset also. So practically देखा जाए एक बार में तो possible नहीं है. So what it will do, एक बार set की मान लेगा, एक बार reset की मान लेगा. That means जो भी पहले अगर है, अगर अभी वो set condition में, that means 1 पे है, तो reset की मान लेगा. That means it will make it 0. अगर वो reset state में, then it will make it set. That means whatever the current state is, it will complement that state. Okay. So SR was not able to do that. So जो भी पिछला आउटपुट था Qn उसका कॉम्प्लीमेंट कर देगा Qn बार. दैट मीन्स वट एवर द प्रीवियस आउटपुट वॉज इट विल बी टोगल्ड, इट विल बी टोगल्ड, उसको टोगल कर दिया जाएगा. विच ऑल्सो फॉर्म द बेसिस ऑफ द नेक्स्ट फ्लिप फ्लॉप विच इज ए टी फ्लिप, विच इज टी फ्लिप फ्लॉप, विच इज प्रैक्टिकली यूज्ड इन काउंटर्स. ओके, so this is your JK flip flop using NAND. Similarly, the next part of it, explain the race around condition. So what is this race around condition? So this race around condition is associated with JK flip flop only. It is associated with JK flip flop. In JK flip flop, if J is equal to K is equal to 1, then what should be the output? Here we can see that we are expecting that output will toggle if J is equal to 1 and K is equal to 1. But in JK flip flop is J is equal to K is equal to 1 and a clock is applied. Then it becomes uncertain to get the toggled output. Okay, so this is race around condition. Now the thing is, where did that uncertainty came from? ये uncertainty आई कैसे, जब सब कुछ डिफाइंड फॉर्म में हमने फ्लिप फ्लॉप रेडी किया है. अभी हमने SR की प्रॉब्लम रिजॉल्व की है इसी 1 1 के थ्रू, बट इसी 1 1 पे ही एक नई प्रॉब्लम आ गई है ऑफ अनसर्टेनिटी इन गेटिंग द टॉगल्ड आउटपुट. सो व्हाट इज दैट अनसर्टेनिटी एंड हाउ इट कैन बी रिजॉल्व्ड, इसको अभी देखते हैं हम. ठीक है, सो 3 थिंग्स वी हैव टू रिमेंबर रिगार्डिंग द दिस रेस अराउंड कंडीशन. फर्स्ट थिंग, that it is a problem which is associated with JK flip flop, and that means which flip flop. Okay, then next thing is when in JK flip flop, when does this race around happens, and then this is what is race around. Okay, this is the third part. So race around को अगर याद रखना है आपको तो 3 चीजें याद रखेंगे कि किस फ्लिप फ्लॉप में होती है, कब होती है और क्या होती है. ठीक है, सो दिस इज द बेसिक ऑफ रेस अराउंड. नाउ वी विल सी व्हाट इज रेस अराउंड इन डिटेल एंड हाउ टू रिजॉल्व इट. सो लेट्स से J इज इक्वल टू दिस वेव फॉर्म. इनिशियली इट वाज 0, नाउ इट इज 1. कोई भी रैंडम वेव फॉर्म बना सकते हैं जिसमें 0 से 1 आप दिखा दें. अल्टीमेटली J इज इक्वल टू 1 चाहिए क्योंकि रेस अराउंड को स्टडी कर रहे हैं. सिमिलरली सेम काम आप K के लिए भी करके दिखा दें. एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम आप 0 से 1 दिखा दें. एक आप अपना आउटपुट एज्यूम कर लें, प्रीवियस आउटपुट. लेट्स से दिस प्रीवियस आउटपुट वाज, एंड सॉरी बिफोर दैट आउटपुट वी हैव टू अप्लाई ए क्लॉक आल्सो. सो फर्स्ट अप्लाइंग द क्लॉक एंड देन now let's say I am taking a level sensitive clock. So this is my positive level sensitive clock. That means this JK flip flop is going to operate when the positive level part of this waveform will arrive. Okay, now there is output Qn. So regarding this Qn, let's say the previous output is 0. Okay, the previous output is 0, J is equal to 1, K is equal to 1, clock is applied, then output should toggle. Okay, so we can see that, but this toggling action will not be into picture until the active portion of the clock is there. ये toggle होगा लेकिन तब तक toggle नहीं होगा जब तक clock का active portion कौन सा है, positive level part. जब तक positive level start नहीं हो जाता तब तक ये toggling होगी नहीं. That means till this point आपके आउटपुट में कोई चेंज नहीं दिखेगा. J की वैल्यू, K की वैल्यू, क्लॉक की वैल्यू, वट एवर द वैल्यू में बी, वेदर इट इज 0 0,
अदरवाइज देखा जाए तो इस पॉइंट पे अगर आप देखेंगे एट दिस पॉइंट J is also 1, K is also 1, J के 1 हो चुका है बट इट इज नॉट कमिंग इनटू इफेक्ट. वाई? क्यों? क्योंकि क्लॉक का एक्टिव पोर्शन इस पोर्शन में नहीं है, क्योंकि क्लॉक का एक्टिव पोर्शन है पॉजिटिव लेवल, तो नेगेटिव लेवल चल रहा है, तो इस वजह से वो इनपुट होते हुए भी एक्सेप्ट नहीं हो रहे हैं. ओके, so this is positive level. Now when this positive level arrives, J is 1, K is 1 and this positive level is there, so it will toggle the output. So 0 से ये क्या हो गया 1, तो ये 0 से 1 हो गया. So at this point of time if you check कि J is also 1, K is also 1 and clock's active portion is still there, so it will again toggle. At this point of time you can again check J is also 1, K is also 1, clock is still there, so it will again toggle. At this point of time you can check J is also 1, K is also 1, clock active portion is still there, so it will again toggle. At this point of time you can check J is 1, K is 1 but clock active portion is not there, so it cannot change further. So ऐसा नहीं है कि टोगल नहीं हो रहा है, जो हम बात कर रहे थे कि अनसर्टेनिटी ऑफ गेटिंग द टोगल आउटपुट, बट थिंग इज कि ये पहली बार टोगल यहां हुआ, यहां दूसरी बार हुआ, ये तीसरी बार और ये चौथी बार. दैट मीन्स मल्टीपल टाइम्स टोगल हो गया विद इन द सेम क्लॉक. ओके, तो आप देखेंगे कि क्लॉक से पहले आउटपुट क्या था 0 और क्लॉक के बाद भी आउटपुट क्या है 0. तो अगर इसको देखेंगे तो ऐसा लगेगा कि सडनली कि हमारे आउटपुट में कोई टोगलिंग हुई नहीं है, बिकॉज ये टोगलिंग तो अंदर इतनी फास्ट स्पीड से दैट आवर ह्यूमन आई कैन नॉट रिकॉग्नाइज कि टोगलिंग हुई भी है, क्योंकि इंटरनली तो बहुत माइक्रो सेकंड नैनो सेकंड के फॉर्म में होके खत्म हो जाएगी. बट हमें ये दिखेगा कि क्लॉक से पहले भी आउटपुट 0 था और क्लॉक के बाद भी आउटपुट 0 है. सो दैट्स वाई वी आर सेइंग कि अनसर्टेन है कि पता नहीं टोगल मिलेगा कि नहीं मिलेगा, बिकॉज अगर ये 4 की जगह 3 बार टोगल हुआ होता तो ऐसा लगता है कि टोगलिंग हुई है, 4 की जगह 5 बार हुआ होता तो ऐसा लगता है कि टोगलिंग हुई है. बट जब जब ये इवन टाइम्स टोगल होगा तो इट विल गिव एन इंप्रेशन कि टोगलिंग हुई ही नहीं है. सो दिस इज द अनसर्टेनिटी देन दैट वेदर इट विल टोगल इवन टाइम्स और ओड टाइम्स. तो ये इवन ओड तो मैं कंट्रोल नहीं कर सकता अपने सर्किट के थ्रू कि इवन टाइम्स टोगल ना हो, ओड टाइम्स ही हो, बट व्हाट आई कैन डू इज मैं ये कर सकता हूं कि ये एक ही बार टोगल हो एंड वन इज ऑल्सो ओड. ओके, तो मैं जो चाह रहा हूं कि एक ही बार टोगल हो, दैट मीन्स ये बार बार टोगलिंग हो किसकी वजह से रही है. J is 1, K is 1, बट इनपुट है, ठीक है, इनपुट इज 1, इनपुट इज परमानेंटली सेट टू 1, बट व्हाट इज दैट विच इज एनेबलिंग दिस मल्टीपल टोगलिंग. तो आप देखेंगे दैट इट इज दिस क्लॉक ड्यूरेशन. ये क्लॉक की ड्यूरेशन इतनी ज्यादा है कि ये टोगलिंग बार बार हो पा रही है. तो अगर आपको लेवल सेंसिटिव क्लॉक ही यूज करनी है देन यू हैव टू एंश्योर दैट कि क्लॉक की ड्यूरेशन इतनी ज्यादा ना हो. तो दिस इज द फर्स्ट सॉल्यूशन. तो फर्स्ट सॉल्यूशन क्या निकल के आया, दैट रिड्यूस द क्लॉक ड्यूरेशन. अब कितनी रिड्यूस करें, अब इतनी भी रिड्यूस ना हो जाए कि पता ही ना चले क्लॉक आई भी थी या नहीं, क्योंकि लेवल की वेट करें, लेवल सेंसिटिव है. लेवल सेंसिटिव है दैट मीन्स एक सर्टेन टाइम के लिए वो लेवल मेंटेन रहना चाहिए, तभी पता लगेगा, अदरवाइज पता नहीं लगेगा कि क्लॉक आई है नहीं. दैट मीन्स द ड्यूरेशन ऑफ द क्लॉक वॉज टी क्लॉक इज लेस देन टी इनपुट. जितनी देर के लिए आप इनपुट रखने वाले हैं उससे लेस देन या इक्वल हो, उससे ज्यादा ना हो. ओके, बट इट शुड बी स्टिल इट शुड बी ग्रेटर. इतनी भी कम ना हो कि एक मिनिमम वैल्यू से, इट शुड बी ग्रेटर देन दिस टी मिनिमम, ग्रेटर देन और इक्वल टू, कि मिनिमम वैल्यू के इक्वल भी हो, उससे कम ना हो जाए. तो कम तो करनी है लेकिन इतनी भी कम नहीं होनी कि दिखे ही नहीं. ठीक है, तो दिस इज द फर्स्ट सॉल्यूशन. एंड द सेकंड सॉल्यूशन इज यूज एज ट्रिगर्ड क्लॉक. ओके, यूज एज ट्रिगर्ड क्लॉक. तो एज ट्रिगर्ड यूज करने से क्या होगा, दैट मीन्स नाउ आई एम फ्री फ्रॉम द ड्यूरेशन ऑफ द क्लॉक. अगर मैं अब क्लॉक की ड्यूरेशन ज्यादा भी ले लेता हूं, सो दिस ड्यूरेशन इज नॉट गोइंग टू मैटर बिकॉज all the transitions, all the out inputs are going to be accepted only at these transitions, this 1 to 0 transition and this 0 to 1 transition. This 1 to 0 transition is known as positive edge and this is known as negative edge. Okay, so this is your second solution for this race around problem. And then the third solution is use of master slave JK flip flop. So this is an entirely
new configuration of a JK flip-flop which is prepared by using a JK flip-flop and SR flip-flop, which is actually D flip-flop, but the actual initial configuration is SR, but it acts like a D flip-flop. Okay, so these are the three solutions by which we can resolve the race around conditions. So from 5 marks point of view, this content is sufficient enough for race around condition. मास्टर स्लेव के लिए अलग से हम लेक्चर रिकॉर्ड कर सकते हैं. सो इफ देयर इज एन इश्यू रिगार्डिंग मास्टर स्लेव फ्लिप फ्लॉप तो आप मुझे डायरेक्टली रिस्पॉन्ड कर सकते हैं या आप बता देंगे चैट बॉक्स वगैरह में या मैसेज बॉक्स में. तो वी कैन प्रिपेयर ए वीडियो फॉर मास्टर स्लेव फ्लिप फ्लॉप एज वेल. ओके, नाउ अनदर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, फ्लिप फ्लॉप कन्वर्जन. Convert SR flip flop into JK flip flop. Okay, so this conversion is of very much importance क्योंकि एग्जाम में रेयर ही कोई क्वेश्चन पेपर बनता है यूनिवर्सिटी एग्जाम जिसमें फ्लिप फ्लॉप कन्वर्जन ना पूछा जाए. तो ऑलवेज देयर इज वन फ्लिप फ्लॉप कन्वर्जन विच इज आस्क्ड इन द एग्जाम. ओके, तो कुछ बेसिक स्टेप्स हैं जिनका आप ध्यान रखेंगे तो कभी गलत नहीं होगा. दैट मीन्स फर्स्ट थिंग इज इट माइट सीम दैट व्हाट काइंड ऑफ स्टेप इज दिस, क्योंकि साफ साफ दिख तो रहा है, बट स्टिल आई एम एम्फसाइजिंग क्लियरली आइडेंटिफाई द गिवन फ्लिप फ्लॉप एंड द फ्लिप फ्लॉप टू बी प्रिपेयर्ड. बिकॉज दोनों की रिक्वायरमेंट्स अलग अलग है. जो गिवन फ्लिप फ्लॉप है उसकी एक्साइटेशन टेबल की रिक्वायरमेंट होगी हमें, और जो फ्लिप फ्लॉप प्रिपेयर करना है, फ्लिप फ्लॉप टू बी प्रिपेयर्ड, उसकी ट्रुथ टेबल की रिक्वायरमेंट होगी. तो अगर ये गलती से आपने गिवन और प्रिपेयर्ड को कंफ्यूज कर दिया और इंटरचेंज हो गए तो आप टोटली ऑपोजिट कन्वर्जन परफॉर्म कर देंगे. दैट मीन्स इंस्टेड ऑफ परफॉर्मिंग SR टू JK यू माइट परफॉर्म JK टू SR. ऐसा बहुत प्रोमिनेंटली देखा जाता है कॉपीज के अंदर. सो बी क्लियर कि which is given and which is to be designed. Okay, so clear हो गया that SR is given. So SR की क्या चाहिए होगी हमें? Excitation. So SR की excitation आप सेपरेटली भी लिख सकते हैं और अगर आपको आती है तो सीधा यूज करना स्टार्ट कर सकते हैं. तो अभी समझाने के पर्पज से मैं आपको बता भी देता हूं कि SR मतलब एक्साइटेशन टेबल होती क्या है. दैट इफ यू आर मेड अवेलेबल ऑफ द फ्लिप फ्लॉप आउटपुट्स, अगर आपको फ्लिप फ्लॉप के आउटपुट्स अवेलेबल करा दिए जाएं कि ये पहले आउटपुट था, अभी ये आउटपुट है, बताएं कि इनपुट पे क्या लगाया होगा कि ये ट्रांजिशन हुआ है आउटपुट में. दैट मीन्स यू आर प्रिडिक्टिंग द इनपुट. और जबकि ट्रुथ टेबल क्या होती है कि आपको बताया जाए कि ये इनपुट है तो बताएं आउटपुट क्या होगा. सो एक्साइटेशन इज अ रिवर्स पार्ट ऑफ इट. कॉम्बिनेशन के लिए एग्जिस्ट नहीं कर सकती क्योंकि क्या कॉम्बिनेशन में एक ही आउटपुट होता है, बट सिक्वेंशियल में एग्जिस्ट कर सकती है. क्यों? क्योंकि आउटपुट प्रीवियस और पास्ट की फॉर्म में, दो फॉर्म में अवेलेबल होता है. तो by observing the output transition we can predict the input. So this 0 0, that means 0 cross, this is 1 0, this is 0 1 and this is cross 0. So I am not going into the details कि कैसे आई है ये, क्योंकि अगर वो करेंगे तो फिर एक सेपरेट टॉपिक हो जाएगा कि एक्साइटेशन टेबल्स कैसे डिराइव की जाती हैं. So for the time being I am simply mentioning the excitation table which is required to perform this conversion. So the first step is आप क्लियरली आइडेंटिफाई कर ले कि दिया क्या हुआ है. तो फर्स्ट स्टेप के अंदर आपने देखा कि SR दिया है तो SR की एक्साइटेशन अपने को चाहिए तो हमने ले ली. सिमिलरली सेकंड थिंग कि जो आपको प्रिपेयर करना है JK, तो JK की क्या चाहिए होगी? ट्रुथ टेबल. ट्रुथ टेबल से भी ज्यादा अगर देखें तो एक्चुअल में कैरेक्टरिस्टिक टेबल चाहिए होगी जो ट्रुथ टेबल का ही एक्सपेंडेड वर्जन होता है. तो दिस 0 0 अभी हमने बनाई थी JK फ्लिप फ्लॉप की, सेम वही यूज हो जाएगी. No change, 0 1 0 1 0 1 and 1 1 toggle, complement of previous. Okay, so this is the prerequisite जो इस कन्वर्जन को परफॉर्म करने के लिए मुझे चाहिए होगा कि SR की एक्साइटेशन और JK की ट्रुथ टेबल. नाउ वी कैन स्टार्ट परफॉर्मिंग द कन्वर्जन. एक्चुअल कन्वर्जन अब स्टार्ट हो रहा है. ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट विद दिस. JK से आप स्टार्ट करेंगे, जो बनाना है वहां से आप स्टार्ट करेंगे. ठीक है, तो इस JK फ्लिप फ्लॉप का आउटपुट जो होगा वो प्रीवियस आउटपुट पे भी डिपेंड करेगा. सो टेकिंग द प्रीवियस आउटपुट एज QN एंड देन वी कैन राइट द नेक्स्ट आउटपुट. सो अल्टीमेटली ये जो आपने अभी ट्रुथ टेबल लिखी है, इसी ट्रुथ टेबल को यूज करके मैं इसकी एक्सटेंडेड ट्रुथ टेबल कह सकते हैं या कैरेक्टरिस्टिक टेबल कह सकते हैं, जिसमें प्रीवियस आउटपुट को कंसीडर करते हुए आउटपुट बता रहा हूं मैं.
दैट मीन्स हर केस के फर्दर दो केसेस बन जाएंगे, 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 1 0 1 1 1 1। दो केसेस क्यों कर रहे हैं हम कि JK 0 0 है, JK 0 0 है तो आपका आउटपुट में कोई चेंज नहीं होता। दैट मीन्स अगर पिछला 0 था तो वो 0 ही रहेगा, पिछला 1 था तो 1 ही रहेगा। दैट मीन्स एवरी केस इज कन्वर्टेड इनटू टू केसेस। ओके, सिमिलरली 0 1, तो 0 1 पे आपका आउटपुट 0 रहता है। दैट मीन्स पिछला 0 था तो भी 0, पिछला 1 था तो भी 0। सिमिलरली थर्ड केस 1 0, तो 1 0 में आप देखेंगे कि अगर पिछला 0 था तो भी 1, पिछला 1 था तो भी 1। एंड लास्ट केस 1 1, 1 1 सेज कि आउटपुट विल टॉगल। दैट मीन्स अगर पिछला 0 था तो अब 1 हो जाएगा, पिछला 1 था तो अभी 0 हो जाएगा। So this is the characteristic table which is prepared from the truth table of the JK flip-flop, or we can simply say it is the elaborated truth table, okay, expanded truth table. Now using this Qn and Qn plus 1, using this Qn and Qn plus 1, you can write the SR. That means this is the behavior जो मुझे चाहिए और ये behavior SR कैसे दे सकता है, मैं ये देखना चाह रहा हूं। So writing the SR. ओके, सो आप देखेंगे 0 0 0 0, दैट मीन्स SR इज 0 क्रॉस। सिमिलरली 1 1 1 1 मीन्स क्रॉस 0, 0 0 अगेन 0 क्रॉस, 1 0 1 0 you can check, 1 0 means 0 1 0 1। Similarly 0 1 1 0 1 1 is cross 0, 0 1 is 1 0 1 0 is 0 1। So these are the excitation inputs of this SR for these possible output transitions। इन transitions के लिए SR के अंदर क्या क्या input लगाए जा सकते हैं ये transition ताकि SR दे दे। okay, so from this table now you can write min terms and don't care terms for SR। so S के लिए आपने terms note की that there are two min terms which is 1 0 0 and 1 1 0। so ultimately these are 4 and 6। okay, plus there are don't care terms as well। don't care terms are, this is 0 0 1, that means 1, and this is 1 0 1, that means 5। so 1 and 5। similarly R is equal to this and this, that means 0 1 1 which is 3 and 1 1 1 7। so this is 3 and 7। so this don't care terms are 0 and 2, 0 is 0 0 and this cross is 0 1 0, that means 0 and 2। so we can solve two K maps। okay, you can solve two K maps। so if we solve this K map like this 4 and 6, so the inputs are the K map labeling। इसका बहुत ध्यान रखना होगा आपको, ठीक है, कि K map की labeling किन इनपुट से करनी है। के मैप को हम ABC की फॉर्म में तो सॉल्व इजीली कर लेते हैं, बट ABC दैट मीन्स दोज केसेस जहां पे ABC पे सब डिपेंड करते हैं तो हम ABC यूज करते हैं। यहां हम ध्यान से देखेंगे तो ये J, K और QN पे सारी फंक्शनिंग डिपेंड कर रही है। दैट मीन्स इनपुट्स और प्रीवियस आउटपुट, जो सीक्वेंशियल सर्किट की डेफिनेशन भी होती है। ओके, सो दीज इनपुट्स एंड द प्रीवियस आउटपुट दे विल डिसाइड द नेक्स्ट आउटपुट। सो दीज आर द डिसाइडिंग वेरिएबल्स। सो डिसाइडिंग फैक्टर्स दैट मीन्स इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स जिनको आप यूज करने वाले हैं, जिनको आप बाहर से अप्लाई करने वाले हैं। तो दिस J, K and QN they should appear in the K map in the same sequence as they are appearing in this conversion table। okay, आप इसको चेंज नहीं कर सकते, जिस सीक्वेंस में यहाँ लिखा है वैसे ही सीक्वेंस में आपको वहां रखना होगा। अगर आपने ये सीक्वेंस चेंज किया तो K map की जो नंबरिंग आप यूज करते हैं कन्वेंशनली वो भी चेंज करनी पड़ेगी, तो बी अवेयर ऑफ दैट। ओके, सो दिस 0 1 3 2 4 5 7 6 ये K map की लेबलिंग है, जिसको आपको ऑलरेडी पता है कि कैसे की जाती है। 0 0 0 1 1 1 1 0। ओके, नाउ फीडिंग द टर्म्स 4 and 6, this is 4, this is 6 and 1 and 5। so you can simply see that there will be a pair, एक पेयर बन रहा है, क्रॉस को हम छोड़ देंगे। दैट मीन्स S इज इक्वल टू, अगर आप आंसर देखेंगे तो इस रो से देखेंगे तो J आ रहा है कॉमन, और फर्स्ट एंड लास्ट कॉलम से तो दिस 0 0 कोरस्पॉन्डिंग टू QN, दैट मीन्स QN बार, तो J QN बार आपके पास आ गया।
सिमिलरली एक और के मैप आप बना सकते हैं आर के लिए, ठीक है। आर के लिए आप देखेंगे मिन टर्म्स आर 3 and 7, सो ये 3 and 7 के मिन टर्म्स हो गई। मैं सीधा डाल रहा हूं, आप दोबारा लेआउट प्रिपेयर कर लीजिएगा। 0 and 2, सो दिस 0 and 2 आर द डोंट केयर टर्म्स। तो इसकी ग्रुपिंग अगर आप ध्यान से देखेंगे तो अगेन एक ही पेयर बन रहा है विच इज कोरस्पॉन्डिंग टू दिस 1 1, so this 1 1 corresponds to KQN, so R is equal to KQN। तो ये आपके पास दो आंसर आ गए के मैप्स के, जिनको यूज करके आप फाइनल कन्वर्जन सर्किट बना सकते हैं। ओके, तो कन्वर्जन सर्किट बनाने के लिए हमें एक स्लाइड और चाहिए होगी, तो लेट्स ऐड वन मोर स्लाइड। सो दीज टू expressions are going to be used, that means S is equal to JQN bar and R is equal to KQN। ओके, तो कन्वर्ट करते हैं सीधा। अब इसके अंदर सबसे प्रोमिनेंट मिस्टेक जो होती है, वी आर यूज टू मेकिंग कॉम्बिनेशनल सर्किट्स। तो हम सबसे पहले ना इसका ऐसा सर्किट बना देते हैं जो एक्चुअल में पूरा टोटली गलत बनता है। हम क्या करते हैं, सीधा देखते हैं कि ये J है, ये K है और ये QN, तो हम ऐसा कुछ बना देते हैं जो हमारी हैबिट में डला हुआ है कि ऐसा कुछ से कॉम्बिनेशन सर्किट बनते हैं कि ये J हो गया and this is QN bar, so this becomes S and R is equal to KQN, so this is K and this is QN, another product and this becomes R। तो ये S हो गया, ये R हो गया and this is the final circuit which is completely wrong। ठीक है, तो अगर आप ऐसा कुछ कर रहे हैं तो ये बिल्कुल गलत है। ठीक है, तो what is the actual circuit? You have to simply read the question carefully। क्वेश्चन क्या कह रहा है, convert SR flip flop, convert SR flip flop, that means SR flip flop is available to you। SR flip flop already आपके पास है, that means पहले SR तो बना दें, that means S and R ये आपके पास है। QN and QN bar, so this is your SR flip flop which is available to you। तो जो अवेलेबल है पहले साफ साफ वो तो दिख जाए। ओके, नाउ वी कैन स्टार्ट प्रिपेयरिंग द कनेक्शंस। तो अब आप देख सकते हैं कि S को जो चाहिए वो चाहिए JQN बार, तो दिस इज QN बार एंड दिस इज J। सिमिलरली R को क्या चाहिए, KQN, सो दिस इज K एंड दिस इज QN। सो दिस इज द conversion circuit which is depicting the SR to JK flip flop conversion। okay, so this is how we can perform the flip flop conversion। okay, so with this we can stop here and now section C is left, which is a 4-bit binary comparator and then BCD adder। so we can cover these two topics in our next video। thank you very much।